गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल एग्जामपुर आईएएस इंग्लिश मीडियम। आप सभी का हमारे परिवार एग्जामपुर में स्वागत है। सो टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस एसी ऑन वायलेंस ऑन वुमेन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। सो यहाँ पे हम लोग जो है वी विल प्रैक्टिस ए कंप्लीट एसे, मीन द थिंग्स विल बी स्ट्रक्चर्ड introduction, temporal skill, and as well as the sectoral things, and in the final we have to see the conclusion. So जल्दी सेशन के जुड़ जाएं, जल्दी सेशन से जुड़ जाएं, जल्दी सभी बच्चे सेशन से जुड़ जाएं। सो द एसे इज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। देखिए एक चीज याद रखिएगा, ऑलवेज यू रिमेंबर वन थिंग, व्हेनेवर वी आर प्रैक्टिसिंग essay, as we have seen, we have to write introductory part. Apart from that, we have to maintain the temporal skill, and we have to move in a continuous phase so that we can cover as much dimension as we can, and finally we have to conclude positively. Apart from that, certain suggestions, or you can conclude it in a phrases manner that is itself explanatory itself. Okay, so these are the things that we have to keep in mind. सो लेट अस स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करते समय जैसे कभी भी जो है ना एसे में इंट्रोडक्शन जो चीज़ है वो लिखना नहीं है, यू हैव टू स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग इटसेल्फ। तो जैसे हम लोग जो है इंट्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन आप किस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन अगर आप जो है केस स्टडी से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है किसी पोएम से स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रेजेस से स्टार्ट कर सकते हैं, कि रियल एग्जाम्पल से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर किसी आप जो है स्टडी से स्टार्ट कर सकते हैं। वॉइस इज नॉट कमिंग। Is it okay, Nitesh? Voice is okay? अभी तो वॉइस आ रही है नितेश? वॉइस ओके? So याद रखिए what we are saying, we are stressing, we are emphasizing on the fact that we have to introduce the essay, but separately you don't have to mention introduction. Apart from that, you can introduce the essay by simple phrases, poem, a short anecdote, that means a short story. Apart from that, you can also start with some case study explaining what is happening around you. So these are the things what we have to consider in mind. So today in this session, अगर हम कोशिश करते हैं तो I would like to go by the case studies. हम जो है कुछ केस स्टडीज के थ्रू जो है चीजों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आप लिख सकते हैं, अभी इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं आप, ए गर्ल was traveling in a bus with her friend, ठीक है। yes sir, sound coming, with her friend, and she was brutally raped and she was brutally raped and killed and her friend was badly injured हम लोग केस स्टडीज लिखने की कोशिश करें, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। ओके, इन द कठुआ केसेस, in the Kathua case, a girl aged 8 years was raped by policemen, even a legislator raped a girl in Unnao district, and her father was killed in custody.
कस्टडी, फादर वाज किल्ड इन कस्टडी, ठीक है ना, फादर वाज किल्ड इन कस्टडी. Still the pain continues when you think of, still the pain continues, still the pain continues when we think of nude protest of nude mother protest of Manipur, when their daughters are being raped by police forces, Assam rifles under the protection of Armed Force Special Power Act. ठीक है. सो दिस इज अवर इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा है देखिएगा ध्यान से. इंट्रोडक्शन में लिखा हमने, a girl was traveling in a bus with her friend and she was brutally raped and killed and her friend was badly injured. In the Kathua cases, a girl aged 8 years was raped by policemen. Even a legislator raped a girl in Unnao district and her father was killed in custody. Still the pain continues when we think of nude murder protest of Manipur, when their daughters are being raped by police forces, Assam rifles under the protection of under the Armed Force Special Power Act. तो आपने देखा यहाँ पे हम जो है डिफरेंट केस स्टडीज को प्रेजेंट कर रहे हैं. ये केस स्टडीज जो है सारे सुने हुए केस स्टडीज है. इट रिफ्लेक्ट्स हाउ द वुमेन, किस प्रकार से जो है जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग एंड परपेचुएटिंग इन आवर सोसाइटी. इज इट क्लियर? वंस इट इज नोटेड प्लीज डू लेट मी नो. सो आई थॉट ऑफ, देखिए आप जो है यू कैन स्टार्ट दिस विद द केस स्टडी, यू कैन स्टार्ट विद द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इवन कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय जो है मींस मेन एंड वुमेन दे आर बीइंग ट्रीटेड इक्वली. बट ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन के एंड में अगर देखा जाए जब एग्रीकल्चर आ गया तो वहां पे जो है वुमेन को दे हैव टू लुक फॉर द डोमेस्टिक वर्क, और जो बाकी जो चीजें इसके बाद से जो आपका सोसाइटी में डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया. तो आई हैव डिसाइडेड टू गो फॉर द केस स्टडीज. ठीक है. एक में बहुत अच्छा आप लोग एक जो है वी नेवर, देखिए हम लोग जब केस स्टडीज की बात करते हैं, अब मुझे आई होप कि सारे बच्चे यहाँ जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं सभी 18 साल से ऊपर होंगे. सो आई वांट टू डिस्कस समथिंग. मैं कल इसी तरीके से आर्टिकल पढ़ रहा था तो आई गॉट ए गुड आर्टिकल जो आप लोग कहीं भी, मुझे लगता नहीं कि कहीं मिलेगा. इट टॉक्स अबाउट द सेक्सुअल एम्पावरमेंट. ये जो है सेक्सुअल एम्पावरमेंट के बारे में बात yesterday in the yesterday classes we talked about social, political, environment, all the sectors are being covered, but I got a new dimension regarding the sexual empowerment. Sexual empowerment क्या है, जो हमारे कामा सूत्र है, तो कामा सूत्र में लिखा गया है कि शादी के बाद जो मतलब फर्स्ट नाइट होता है जिसे हम सुहागरात कहते हैं, ठीक है ना, वहां पे फर्स्ट नाइट कहा जाता है. तो एक्चुअली जो फर्स्ट नाइट जो सेलिब्रेट करना चाहिए वो फर्स्ट नाइट 3 दिन के बाद होना चाहिए. 3 दिन के बाद इसलिए कहा गया है कि जो आप मतलब कपल्स या फिर जो हस्बैंड वाइफ जो है 3 दिन में एक दूसरे से दोस्ती हो जाती है, कंफर्ट हो जाता है, ठीक है ना, भरोसा डेवलप हो जाता है, एक अननोन चेहरा नहीं रहता है. अगर 3 दिन के बावजूद भी जो है वो महिला मतलब जो लेडीज है अगर उसके साथ कंफर्ट नहीं हो पाती है तो आपको इंतजार करना चाहिए, यहाँ तक कि और आपको 20 दिन तक इंतजार करना चाहिए ताकि वो जो है आपसे दोस्ती हो जाए, जान पहचान हो जाए, तब करना चाहिए, ठीक है ना. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तो जो फर्स्ट नाइट में भी जो होता है उसे भी आप जो है मैरिटल रेप का एक दर्जा दे सकते हैं. अगर वो कंसेंसुअल सेक्स नहीं है तो मैरिटल रेप का दर्जा दे सकते हैं. आज की सोसाइटी की बात अलग है कि शादी जब तय हो जाता है तो लोगों के पास 2-3 महीना का विंडो पीरियड होता है, उसमें लोग जो है बातचीत कर लेते हैं. एक एस्पेक्ट की हमने बात की थी, यहाँ तक कि जब मतलब मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वहां पे लिखा था कामासूत्र में कि बिफोर हैविंग सेक्स जो है आप मतलब महिला से पूछना चाहिए कि व्हाट सॉर्ट ऑफ प्लेजर सी रिक्वायर्स एंड उसके अनुसार जो है करना चाहिए. बट इंडियन सोसाइटी में क्या है कि जो महिला जो है वो ओपन नहीं हो पाती है, बोल्ड नहीं हो पाती है. अगर वो इस तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं तो हस्बैंड को ये लगता है कि उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है या फिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है, उसको उसके अंदर में शर्म है नाम की चीज़ नहीं है. तो अल्टीमेटली देखा जाए तो वुमेन जो है दे आर नॉट बीइंग एम्पावर्ड सेक्सुअली ऑल्सो. एक नया डायमेंशन था.
डोंट टेक इट अदरवाइज जो सोचने की जरूरत नहीं है। सो वंस इट इज रिटन प्लीज डू लेट मी नो। नोट डाउन आप लोगों ने कर लिया? सारे बच्चे कहाँ हैं हमारे? बहुत सारे बच्चे क्लासेस में नहीं है, सुरभि नहीं है, मृदुल नहीं है, नितेश इज देयर इन द क्लासेस। ठीक है, चलिए। बहुत सारे कल इतना समझाने के बाद, कल मेरे इतना समझाने के बाद कि बच्चों लोगों को कोशिश करना चाहिए कि लाइव क्लासेस अटेंड कर सके, ताकि जो है आपके अंदर में जो डाउट्स है, डाउट को आप एड्रेस कर सकें, ठीक है ना। और लाइव क्लासेस अटेंड करने से हमें भी जो अच्छा लगता है, लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी जो है हमारे बच्चे जो है दे आर वेरी मच एडमेंट, मतलब नहीं करना है तो नहीं करना है कि नहीं? ऐसा मत कीजिए आप लोग। आप ही लोग के लिए सारे सेशंस यहाँ पे प्लान किए गए हैं, सारे सेशन जो है आप ही लोग के लिए प्लान किए गए हैं। कोशिश किया कीजिए क्लासेस को लाइव अटेंड करें, ताकि जो घर में डाउट किस बात का, अगर आप मान के चलिए कि आपको बेनिफिट मिले तो सही तरीके से बेनिफिट उठाइए। क्लासेस अगर आप लाइव अटेंड कीजिएगा तो लाइव अटेंड करने से जो हमें भी अच्छा लगता है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो डाउट पूछते हो, डाउट एड्रेस करने में हमें अच्छा लगता है। हमें लगता है कि चलो बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, नहीं तो ऐसे क्या फील होता है। आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो आप बताइए, क्वालिटी में अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो आप मुझे दिखाइए कि अगर आप यूट्यूब की अगर बात करें तो यूट्यूब पे आप लोग मुझे लिंक भेजिए कि कौन ऐसा फैकल्टी है जो कि आपका हाथ से लिख के ऐसे राइटिंग करवा रहा है, पूरे हर एक डायमेंशन से रिलेटेड। कोई अगर है ऐसा तो मुझे भेजिए, ठीक है। ये नोट डाउन हो गया? आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है? नोटेड? सुरभि, नितेश? ठीक है, चलिए ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन हम लिख चुके हैं, तो अब हम लोग कोरिलेट करें। हमेशा देखिए कि ऐसे में हमें कोरिलेशन रखना काफी इंपॉर्टेंट है, चीजों को कोरिलेट करना है, ताकि हम जो है एक कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकें। तो आप यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। वायलेंस अगेंस्ट women is a very complex issue, is a very complex issue. Basically violence starts when girl remains in a fetus state. When girl remains in a embryonic या fetus stage, embryonic या फिर fetus stage, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, violence against women is a very complex issue. Basically violence starts when girls remains in a embryonic or fetus stage, ठीक है ना, fetus stage, due to fear of being aborted, and when she is born again there is a probability of of female infanticides. There is a probability of female infanticide. She is never been treated equally with men, equally with boy child, लिख सकते हैं। she is never being treated equal with male child, male child, and as
she as she grows as she grows as she grows as she grows, there is a possibility of child marriage where she is being sexually exploited, where she is being sexually exploited, where she is being morally, physically assaulted, or during this phase there is a possibility of sexual abuse, or during this phase she experiences certain form of sexual abuse even after marriage, domestic form of violence is being noticed, domestic form of violence is being noticed the pain and violence is still being practiced, even she become a widow, either she will become a victim of become a victim of domestic violence or she will get remarried to serve as water wife. ठीक है? Is it clear? देखिए मैंने क्या लिखा है इस एसे के दौरान, मैंने ये क्लियर करने की कोशिश, पहला तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन जो है स्टार्ट किया था विद सर्टेन केस स्टडीज सो दैट वी कैन एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ वायलेंस ही इज एक्सपीरियंसिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट इन द फर्स्ट पैराग्राफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्पोरल स्केल. मैंने बताया था कि जो हम लोगों ने कल माइंड मैपिंग के दौरान चीजों को समझने की कोशिश की है, वही चीज यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड होगा ताकि जो है आपका एसे जो होगा कंप्लीट. पहले क्लासेस में हम लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशंस देखा, दूसरे क्लासेस में माइंड मैपिंग, तीसरी क्लासेस में माइंड मैपिंग अलोंग विथ स्ट्रक्चर माइंड मैपिंग, चौथी क्लास में हम उसी माइंड मैपिंग से रिलेटेड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. मैं डिनर नहीं करूंगा, डोंट वरी. हमारे बच्चे नहीं आ रहे हैं, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है. लिटरली मेरे बच्चे नहीं आ रहे. कम से कम 10-12 इतना मेहनत करते हैं हम लोग, आपके लिए मेहनत करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे बच्चे नहीं आ रहे, मुझे बहुत तकलीफ होती है. नॉट टॉकिंग अबाउट मृदुल जी, सुरभि जी, नितेश जी, तो सभी लोग आते हैं. देखिए चलिए लीव इट, अभी मैं यहाँ बात नहीं करना चाहता. तो आप पहले अगर हम फर्स्ट पेजेस की बात करें तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्पोरल स्केल मीन वी हैव टॉक्ड अबाउट द टाइमलाइन कि राइट फ्रॉम द फर्टाइल स्टेज till her death she is experiencing certain form of sexual violence, certain form of domestic violence and maybe. तो अब यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर इस प्रकार से किया है.
वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज ए वेरी, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली नोट इट डाउन, आप लोग याद रखिएगा, डू नॉट टेक द स्क्रीनशॉट। अगर आप सही बच्चे हैं, इफ यू आर द सीरियस एस्पिरेंट, डू नॉट डिपेंड अपॉन द स्क्रीनशॉट, बिकॉज स्क्रीनशॉट हमारी आदतें बिगाड़ देते हैं। आपने देखा होगा हमारी जो सेशन हुई थी वहाँ हम लोगों ने बताया था कि आपको लिखना है, क्योंकि मेंस में सिलेक्शन आपके लिखने से ही होगा, तो आपको लिखना है, ठीक है। कितना अच्छे स्पीड से लिखते हैं, हैंड राइटिंग की परवाह मत कीजिए, हैंड राइटिंग आपका बस पढ़ने योग्य होना चाहिए, लेकिन आपको लिखना है। तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, violence against women is a very complex issue. Basically, violence starts when girl remains in a embryonic or fetus stage due to the fear of being aborted, and when she is being born, when she is being born, again there is a probability of female infanticides. She is never being treated equal with male child, and as she grows there is a possibility of child marriage, and where she is morally, physically assaulted, or during this phase she experiences certain form of sexual abuse. Even after marriage, domestic form of violence is being noticed. The pain and the violence is still being practiced even she becomes a widow. Either she will become a victim of domestic violence, or she will get remarried to serve as water wife. सर ऐसे का टॉपिक डिफरेंट होगा तो वहां कैसे मैनेज होगा, मतलब मैं समझ नहीं पाया। निकी जी क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए मुझे, नोट डाउन कीजिए जल्दी जल्दी सभी बच्चे। देखिए ऐसे का टॉपिक, देखिए अभी क्या होता है, ऐसे लिखना एक कला है, समझिएगा। ऐसे राइटिंग इज एन आर्ट, ध्यान से सुनिए, ऐसे राइटिंग इज एन आर्ट। तो इन द फर्स्ट क्लासेस वी हैव डिस्कस द रूल्स, रेगुलेशंस, फ्रेमवर्क, व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऐसे। सेकंड क्लासेस में हम लोगों ने माइंड मैपिंग डिस्कस किया था, है ना। फिर कल की क्लासेस में हम लोगों ने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन से रिलेटेड डिफरेंट डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश की, केस स्टडीज कोट करने की कोशिश की। आज उससे हम ऐसे लिख रहे हैं। तो 4 आपकी क्लासेज है, 4 क्लासेज में आपको ये तो पता चल गया ऐसे किस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से स्ट्रक्चरिंग करना है, किस प्रकार से नोट्स बनाने हैं और वगैरह वगैरह। और हम 3-4 ऐसे लिखेंगे, 4-5 ऐसे करेंगे, तो 4-5 ऐसे में आपको जो है एक आइडिया मिल जाएगी ऐसे किस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर एक वीक में आप एक संडे आप लोग जो है ऐसे लिखा करें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे लिखने के लिए क्या है, जो टॉपिक लेते हैं उसको डिकोड करने की कोशिश कीजिए, उससे रिलेटेड आप फैक्ट्स, डाटा, केस स्टडीज, इंटरनेट साइट्स वगैरह से एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद आप जो है रूल्स रेगुलेशंस आपको पता है, स्ट्रक्चरिंग करके लिख दीजिए, ठीक है। हाँ तो हम लोग सीखेंगे निकी जी, वी विल ट्राई टू लर्न, हम लोग जो है चीजों को सीखेंगे। अभी तो हम लोग कितनी क्लासेज हुए, आज हमारी तीसरी क्लासेज है। एटलीस्ट एक बात बताइए निकी जी, आज आप लोग की 4th क्लासेज है, 4th क्लास में आप लोग को बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ है? 4th क्लासेज है, बेनिफिट हुआ। नितेश जी, निकी जी मुझे ये बताइए, मृदुल जी, सुरभि जी, कि आज हमारी 4th क्लासेज है, 4th क्लासेज में आप लोग को कितना बेनिफिट हुआ है, कितना बेनिफिट हुआ है? एक बार आप लोग अगर ऐसे राइटिंग कर लेंगे तो कभी कभार, जैसे कभी मान के चलिए संडे है, संडे को मैं आप लोगों का ऐसे राइटिंग क्लासेस ले लूंगा, ठीक है, ओके, सब करेंगे हम लोग। तो चौथी क्लासेस में आप लोग कितना फायदा हो रहा है, फायदा हुआ है कि नहीं हो? मृदुल जी, नितेश जी, निकी जी, फायदा हुआ है कि नहीं हुआ? चौथी क्लासेज है, अगर आप मान के चौथी क्लासेज में ये कंडीशन है, अगर हम लोग 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लासेज जब कंप्लीट होगी तो आपके पास पूरा नॉलेज रहेगा। 4-5 ऐसे आप लोग लिख चुके होंगे। बस उसके बाद क्या करना है कि आपको हर वीक ऐसे लिखना है, हर वीक ऐसे लिखना है, ऐसे लिखिए। ऐसे लिखने के लिए नेट से कंटेंट डाउनलोड कीजिए, केस स्टडी डाउनलोड कीजिए, माइंड मैप ड्रॉ कीजिए, इसका स्ट्रक्चरिंग कीजिए। यस सर, वेलकम शुभम शेखर, ओके। तो धीरे धीरे होता है ना चीजें, आप धीरे धीरे चीजें होती है ना, कुछ समय लगता है। चलिए नोट डाउन हो गया, जल्दी से बताइए, नोट डाउन हो गया, आप लोगों ने नोट कर लिया? वेलकम शुभम, नोट डाउन कर लिया? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, नोट डाउन सभी बच्चों को करना है। और मैं जैसा लिखता हूं, मेरे लिखने के साथ साथ आप लोग लिखा कीजिए, स्पीड बढ़ाइए सारे बच्चे। ठीक है, चलिए
नोटेड? मैं अभी आया हूँ, आज की क्लास का नहीं पता था, पहले की 3 क्लासेस से बहुत फायदा हुआ है। नील, कोई बात नहीं है, थैंक्स। चलिए ठीक है, अब हम लोग इससे लिखते हैं। अब दूसरे पैराग्राफ में जाते हैं, यहाँ तक लिख दिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर। अब हमें चीज़ों को कोरिलेट करना है। कोरिलेट किस तरीके से करना है वो भी देखिएगा। जहाँ कोरिलेट करना है मैं वहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा सर, ठीक है। चलिए, तो हम लिख सकते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस। पैट्रियार्कल एटीट्यूड लिख सकते हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी लिख सकते हैं आप लोग। पैट्रियार्कल society attitude is responsible for violence of women, violence against women in the society. Patriarchal society, patriarchal society is responsible। देखिए, पैट्रियार्कल सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं जो फैक्ट है, इवन द वुमेन आर रिस्पॉन्सिबल। इवन आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग मैं बता रहा हूं, ठीक है, याद रखिएगा। इवन द वुमेन इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। किस प्रकार से आप देखिएगा, एक माँ जो होती है, ठीक है, वो जब 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 उसकी शादी होती है तो घर की बहू होती है, बेटी होती है, जो होती है। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतता है, लड़के बच्चे हो जाते हैं, उनका माँ का स्टेटस मिल जाता है, उनके घर में रिस्पेक्ट वगैरह स्टार्ट हो जाती है। लेकिन माँ खुद नहीं चाहती है, जैसे गांव की बात करें, कुछ गांव की बात करते हैं, आजकल तो डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि अगर पैसे की कमी है, तो माँ कभी ये नहीं चाहेगी कि मेरे 2 बच्चे, दोनों बच्चों सरकारी स्कूल में जाके पढ़े। वो बोलेगी नहीं, मेरा बच्चा जो है वो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जाके पढ़ेगा, और जो है लड़की वो हिंदी मीडियम स्कूल में जाके पढ़ेगी। और फिर जो लड़का है जब घर में आएगा तो उसको अच्छा से खान पान, बच्चा बेटे तुम सो जाओ, तुम रात को पढ़ाई करना, बेटी को बोलेगा देखो जाके चाय बनाओ, घर साफ करो। ये एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग सिर्फ पैट्रियार्कल सोसाइटी की बात नहीं कर, हम जो है पैट्रियार्कल थॉट के बारे में नहीं बात, हम सिर्फ मेल को ही सिर्फ गलत नहीं साबित कर सकते। इवन अगर वुमेन की भी बात करें तो वुमेन भी जो है दे आर इक्वली रेस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेंस दैट इज बीइंग पेनिट्रेटिंग इन द सोसाइटी। कभी भी जो है कभी भी जो है, अगर आप देखिएगा तो लड़की को जो है थोड़ा सा कहा जाता है सोसाइटी में कि रात को मत निकलो। इसके ऊपर मैं जब एंड करूंगा तो गांधी जी का एक कोट है, मैंने उसके स्क्रीनशॉट मार के रखा है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर सो मच, इतना बड़ा थॉट, वो मैं एंड करने की बात करूंगा। जब सोसाइटी में देखिएगा कि लड़की को ये नहीं मत करो, वो मत करो, ये मत करो, लड़का सब कुछ करे। अगर लड़की किसी लड़के से बात करती है तो उस दिन उसका मोबाइल छीन जाएगा, या तो कुटाई भी हो जाएगी, मम्मी तो कुटाई कर देगी, बाप है तो बाप थोड़ा समझाने की कोशिश करेगा। लेकिन लड़का अच्छा काम नहीं तो पढ़ाई डिस्टर्ब होगा, आइंदा ऐसा मत करना। तो ये भाई आप इक्वल स्टेटस को देना सीखिए। अगर लड़की वो चीज नहीं कर सकती आपके घर में तो लड़का को भी नहीं करना चाहिए, लड़के को भी नहीं करना चाहिए। अगर मेरा लड़का होगा तो दोनों की इक्वल ट्रीटमेंट होगा। अब अगर माई डॉटर इफ सी, अगर उसको अलाउ है तो लड़का को अलाउ है, अगर लड़के को अलाउ नहीं है तो लड़की को भी अलाउ नहीं है। दोनों सेम कुटाई खाएंगे, कुटाई में भी सेम, फिजिकल स्ट्रेंथ भी मैं नहीं देखूंगा, ठीक है ना। चलिए, मजाक कर रहा था। चलिए, सो पैट्रियार्कल, लेकिन ये चीज हकीकत है, मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। जो भी यहाँ पे कुछ मैं ऐसे फैक्ट्स को भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। डोंट टेक, आप लोग उस फैक्ट को गलत दिशा में मत लीजिएगा, क्योंकि सभी लोग जो 18 साल के ऊपर है। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वायलेंस अगेंस्ट women, certain traditions, just a moment, हमें कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है ना। on the socio-cultural aspect, cultural aspects, it is being noticed that certain traditions, customs, consider certain tradition, customs, confers
पावर अपॉन मैन, पावर अपॉन मैन to consider women as an object, ठीक है ना। दो देयर आर बिंग इनहेरिटेंस राइट, ध्यान से सुनिएगा, मैं वही एग्जांपल कोट कर रहा हूं। दो देयर आर बिंग इनहेरिटेंस राइट, दो देयर आर बिंग, क्या होता है, आप जो रियलिस्टिक एग्जांपल कोट करते हैं ना, तो एग्जामिनर होता है वो ये देखने की कोशिश करता है इसने कहीं कोचिंग वगैरह से कोट नहीं किया हुआ है, उसने रियलिस्टिक एग्जांपल जो अपने इर्द गिर्द देख रहा है उसी को प्रेजेंट किया। जनरल स्टडीज है, आप जो देख रहे हैं वही चीज आपको प्रेजेंट करना है, लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो दो दे आर बिंग इनहेरिटेंस लॉज but mother itself do not prefer to share their property with the daughter, with her daughter, ठीक है। Is it okay? ठीक है ना, ओके। इन द डॉटर, though they are having inheritance right, but it is being men considers women as an sexual object, but even sexual empowerment is not being conferred upon women, ठीक है। Is it okay? तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, patriarchal society is responsible for violence against women. On the socio-cultural aspect, it is being noticed that certain traditions, customs confers power upon men to consider women as an object, though there are being inheritance laws, but the mother itself don't prefer to share their property with her daughter. Men considers women as an sexual object, but even sexual empowerment is not being conferred upon women, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, मुझे बताइए, जल्दी से बताइए, हमें जल्दी लिखना है, मुझे घर जाना है 11 बजे। 11 बजे का मेट्रो बंद हो जाती है, मतलब एंड इट टेक्स अराउंड 50 मिनट्स टू रीच होम। तो मुझे जो है आपका ऐसे ये कंप्लीट कराना है। आई डोंट वांट टू, मैं पेंडिंग चीजें नहीं चाहता हूं, तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए। डू लेट मी नो। ठीक है, नोट डाउन, जल्दी से जल्दी नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? जल्दी सभी लोग नोट डाउन करके मुझे बताएं। ऐसे में कम से कम हमें 1000 से 1200 वर्ड्स लिखने होते हैं, मतलब आप आंसर राइटिंग कंसीडर कीजिएगा तो 6 आंसर राइटिंग। अब आप सोच लीजिए, मैं उतना ज़्यादा वेट नहीं करूंगा, मेरे साथ लिखा कीजिए आप लोग। ऐसे राइटिंग की क्लासेस की अगर बात करें तो ऐसे राइटिंग की क्लासेस जो होती है आपकी 3 घंटे 3.5 घंटे की क्लासेस होती है। आधा छोड़ूंगा, फिर मैं आप लोग को होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे हमने नोट डाउन किया है, यहाँ पे सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के बारे में बात की हम लोगों ने, और सेक्सुअल एम्पावरमेंट के बारे में बात की। मतलब हम लोग जो है नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग सेक्सुअल एम्पावरमेंट से चीजें स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन द
in the Kama Sutra it is being mentioned that in the Kama Sutra, it is being mentioned that first night after the marriage, first night after the marriage, after the marriage should be practiced after 3 days, after 3 days, or after 20 days, or after practiced after 3 days, or after 20 days, when woman becomes comfortable, with the husband, woman becomes comfortable with the husband. If it is not being practiced, the person is considered as pig. ये भी लिखा हुआ, ठीक है ना. If it is, welcome Ganit, if it is practiced on first night itself, against the will of woman, against the will of woman, he will be considered as pig. He will be considered as pig. ठीक है. Even men should ask women about what type of sexual pleasure she is expecting. What type of pleasure she is expecting, and that must be followed, and that must be followed, but woman feels shy to express her desire, her desire as she will be considered as experienced one, or characterless. She is even not sexually empowered. ठीक है. इज इट ओके? एक नया कंसेप्ट आप लोगों को मिला होगा. वेलकम गणित जी, आई मस्ट वेलकम यू. एक आप लोगों को नया कंसेप्ट मिला होगा. डेफिनेटली ये कंसेप्ट आप लोगों ने कहीं सुना नहीं होगा. डोंट टेक इट अदरवाइज. ऐसे को थोड़ा सा रोमांचक बनाने के लिए मैंने ये चीज़ ऐड किया है. तो आप देख सकते हैं कि कामा सूत्र में मेंशन किया गया है कि जो पहली नाइट होती है वो पहला नाइट नहीं होना चाहिए, 3 दिन के बाद होना चाहिए, या फिर 3 दिन में अगर आपकी वाइफ उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होती तो 20 दिन के बाद होना चाहिए. अगर पहली नाइट में कोई जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है अगेंस्ट द विल ऑफ वुमेन, उसको सुअर की उपाधि दी गई है, मतलब कंसिडर एज पिग. यहाँ तक कि जो है
मैन शुड आस्क कि क्या व्हाट सॉर्ट ऑफ प्लेजर सी इज एक्सपेक्टिंग, लेकिन ऐसा है कि वुमेन जो है सी फील्स शाई टू एक्सप्रेस समथिंग बिकॉज सी विल कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस वन और कैरेक्टरलेस। तो आप देख सकते हैं, वेलकम निरंजन कुमार, वेलकम। आप देख सकते हैं कि इवन सी इज नॉट बीइंग सेक्सुअली एम्पावर्ड। डेफिनेटली नया कंसेप्ट होगा आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। ओके तो यहाँ पे अब क्या करना है हमें, अब हमें चीजों को लिंक करना है, ठीक है। तो लिंक करने के लिए क्या करूंगा, सी इज नॉट ओनली सी इज नॉट ओनली सेक्सुअली एम्पावर्ड, सी इज नॉट ओनली सॉरी को हमें लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए लिख सकते हैं हम लोग even economic empowerment, economic empowerment, even economic empowerment is being denied to women, is being denied to women as sexual empowerment, as sexual empowerment। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो है आपका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में लिंक कर दिया कि अब हम जो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है? सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक और शेयर कर दें। मजा आ रहा है नितेश जी ऐसे लिख के, मृदुल जी, गणित जी, सुरभि जी, निकी सर ऐसे राइटिंग का आज फर्स्ट क्लास है क्या सर, बताएं प्लीज, मुझे भी ऐसे राइटिंग सीखना है। गणित जी ऐसे राइटिंग का ये चौथा क्लासेस है। मैं कल चेक कर लेता हूं, अगर प्लेलिस्ट नहीं डेवलप हुई होगी तो मैं प्लेलिस्ट डेवलप कर दूंगा। ये चौथी क्लास है। पहले की क्लासेस में हम लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशंस डिस्कस किए थे, दूसरी क्लासेस में हम लोगों ने एक ऐसे कमांड मैपिंग सीखने की कोशिश की थी, तीसरी क्लासेस में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन से रिलेटेड सारा डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश की थी। आज हम लोग उसकी स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन हो जाए तो मुझे बताइए, जल्दी से नोट डाउन करके मुझे बताइए आप लोग। ओके जल्दी लिखिए, हमें जल्दी से आज ऐसे कंप्लीट करना है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी हाइट कम है, तो मुझे इतना ऊपर लिखने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, फिर भी मैं लिखता हूं। और आप लोग कॉपी में लिख रहे हैं तो इतना समय लग रहा है, कैसे होगा काम। मतलब उतनी भी हाइट मेरी कम नहीं है, 5.6 है। चलिए ठीक है, प्लेलिस्ट क्रिएट करवा दीजिए प्लीज, ठीक है। चलिए ओके डन। ओके अब हमें क्या लिखना है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करनी है। तो आज ही की करंट अफेयर की बात करें तो आज ही के करंट अफेयर में आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज किया गया था, जो कि 146 कंट्रीज में से इंडिया का परफॉर्मेंस 135 कंट्रीज था। उसमें भी अगर देखा जाए तो जेंडर गैप के जो पैरामीटर्स होते हैं, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, उसमें इंडिया का वर्स्ट कंडीशन है 146 में, तो 146, ठीक है। ओके तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये आज ही का जो अभी मॉर्निंग में रिपोर्ट रिलीज हुआ है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जब आप करंट केस स्टडीज ऐड कीजिएगा तो आपका ऐसे काफी बेहतर रिफ्लेक्ट करता है। तो इंडिया रैंक्ड 135th, इंडिया रैंक 135th आउट ऑफ 146 कंट्रीज ऑन वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट, ऑन जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट released by World Economic Forum, released by World Economic Forum, and India performed worst on economic participation on women. And in this report,
in this India performance was worst on economic participation of women, on economic participation of women, India ranked 146th out of 146 countries, out of 146 कंट्रीज। ठीक है ना, ये हमने रिपोर्ट की बात कर ली, जो आज लेटेस्ट रिपोर्ट जो हुआ है उससे रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं इंडिया रैंक 135 आउट ऑफ 146 कंट्रीज ऑन जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एंड इन दिस इंडिया परफॉर्मेंस वाज वर्स्ट ऑन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। इंडिया रैंक 146 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। ठीक है ना, आप उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं दो देयर आर बीइंग प्रोविजन, दो देयर इज बीइंग, जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, देयर इज बीइंग प्रोविजन, दो देयर इज बीइंग प्रोविजन फॉर मैटरनिटी लीव, दो देयर इज बीइंग प्रोविजन फॉर मैटरनिटी लीव and crèche facilities, but MNCs are reluctant to take married women as they think that as they are of opinion that married women productivity decreases, productivity जो होता है productivity decreases productivity decreases as she has to take care of their family, as she has to take care of her child and their family देखिए, मैं एक चीज बता देता हूँ, मैं यहाँ पे काफी सिंपल इंग्लिश का प्रयोग कर रहा, आपने देखा होगा मैं यहाँ पे काफी सिंपल इंग्लिश का प्रयोग कर रहा। रीजन बीइंग व्हाट, रीजन ये कि हमारे बच्चे जो हैं उसको आराम से समझ सके। अगर टफ इंग्लिश का प्रयोग करेंगे तो हमारे बच्चे को समझ में नहीं आएगा, फिर जो मेरा पूरा एम है कि बच्चे को ऐसी राइटिंग आए, वो चीज़ पूरा नहीं हो पाएगी। इसलिए आपने देखा होगा मैं ऐसी राइटिंग सिखा रहा हूँ, आपको इंग्लिश राइटिंग नहीं सिखा रहा हूँ। इसलिए मैं काफ़ी सिंपल इंग्लिश का, जो आप लोग जिस इंग्लिश को समझ सके उसी इंग्लिश का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है कि इंडिया रैंक 135 आउट ऑफ 146 कंट्रीज ऑन द जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एंड इन दिस इंडिया परफॉर्मेंस वाज वर्स्ट ऑन द इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। इंडिया रैंक 146 आउट ऑफ 146 कंट्रीज, दो देयर इज बीइंग प्रोविजन फॉर मैटरनिटी लीव एंड क्रेच फैसिलिटीज, बट MNCs आर रिलक्टेंट टू टेक married women as they are of opinion that married women productivity decreases as she has to take care of her child and their family. Clear है? ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, मुझे चेंज करना है यहाँ पे। अब हमें कंटिन्यू करना है, तो आप लिख सकते हैं इवन वुमेन आर लेगिंग behind men in political participation too, that is being
that is being clearly reflected, that is being clearly reflected in the report, that is being clearly reflected in this report, in this रिपोर्ट। ठीक है, तो हम लोग इसी रिपोर्ट के थ्रू इकोनॉमिकली भी रिप्रेजेंट कर दिए। अब जो है हम लोग यहाँ पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की भी बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इवन वुमेन इज लैगिंग बिहाइंड मेन इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन टू दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द रिपोर्ट। तो हम अब किसके बारे में बात करेंगे? पॉलिटिकल, हम जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बारे में बात करेंगे। हम जो है किसके बारे में बात करेंगे? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बारे में बात करेंगे। जल्दी जल्दी सभी बच्चे कहाँ चले गए? नितेश जी, नितेश, निकी, मृदुल, शुभम, सभी बच्चे कहाँ चले गए? अभी ऐसे कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसे राइटिंग जो है बहुत एक कह सकते हैं, इट इज ए वेरी डिफिकल्ट जॉब। ये जो है इट इज ए वेरी डिफिकल्ट जॉब। सो जल्दी जल्दी नोट डाउन करके मुझे बताइए। Once it is noted, please do let me know. हमें एसे को कंप्लीट करना है, हमें एसे को जो है कंप्लीट करना है। सुरभि जी, वेरी गुड। ऐसे टफ तो नहीं लग रहा आप लोग? ऐसे ना मैं वो सिंपल लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ। सिंपल लैंग्वेज इसलिए कर रहा हूँ कि जो बच्चे जो है सिंपल लैंग्वेज को समझ सके। अगर हम ऐसे में अगर मान के चलिए कि सोफिस्टिकेटेड वर्ड का प्रयोग करूंगा तो ऐसे फिर ऐसे एक अलग ही समझना है, सोफिस्टिकेटेड वर्ड को अलग समझना है, सेंटेंस को अलग समझना है। ठीक है ना? तो इसलिए मैं काफी सिंपल इंग्लिश का यहाँ पे प्रयोग कर रहा हूँ। इज इट ओके? चलिए, वेरी गुड। मुझे लास्ट का कोट लिखना है, मुझे गांधी जी का। अगर समय नहीं मिलेगा सो ऐसे जो है एटलीस्ट अब डिफरेंट पैरामीटर्स तो लिख ही रहे, 2-3 पैरामीटर्स आप लोग खुद लिख लीजिएगा। लास्ट का हम लोग ऐसे का एंडिंग कर देंगे। ठीक है ना? 2-3 अगर जब अभी देखिए 9:15 तक जहां तक हम लोग लिख सके, जितने पैरामीटर्स को कवर कर सके, 9:15 के बाद जो है 10:15 के बाद जो है मैं एंडिंग कंक्लूजन पार्ट यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है? क्योंकि कंक्लूजन पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने काफी अच्छा कंक्लूजन निकाला है। देखिए लर्निंग जो है इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। चलिए देखते हैं। So it is being evident from the report, यहाँ लिख सकते हैं it is being evident from this report, it is being evident from this report that there is underrepresentation, underrepresentation of women in political sphere, in political sphere. Though there is a provision of 33% reservation in Gram Panchayat election, though there is a provision of 33% reservation in Gram Panchayat election, there is a though there is a provision of 33% reservation in Gram Panchayat election, but this is surrogate representation, but this is surrogate मैंने कल बताया था। representation, actual power lies in surrogate पति। क्या बोलते हैं उसे? surrogate पति। ठीक है ना? surrogate पति। ठीक है? ओके। इवन द एनवायरमेंट सेक्टर आप लिख सकते हैं फिर यहाँ पे, नॉट ओनली पॉलिटिकल
even environment induces certain form of violence on women, ठीक है ना। जल्दी से लिखिए आप लोग। अब हम किसके बारे में लिखेंगे, अब हम जो है एनवायरमेंट के बारे में लिखेंगे। किसके बारे में लिखेंगे, एनवायरमेंट के बारे में लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है, तो जल्दी से लिखिए। यहाँ पे हमने लिखा है, इट इज बीइंग एविडेंट फ्रॉम दिस report that there is underrepresentation of women in political sphere, though there is a promise of 33% reservation in gram panchayat election, but this is surrogate representation. Actually power lies in surrogate pati, not only political, even the environment induces certain form of violence against women, ठीक है। ठीक है, चलिए ओके, मैं चेंज कर रहा हूं, एनवायरमेंट सेक्टर की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, जल्दी से बताइए, नोटेड। चलिए, यस डेफिनेटली होगा। ऐसी राइटिंग एक कला है, एक दिन में डेवलप नहीं होता गणित जी। आप जितना अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अधिक। मेरे एक दोस्त थे सुमित जी, उनका ऐसे में 168 मार्क आया था, तो उन्होंने करीब 50 से 60 ऐसे लिखा था, 50 से 60 ऐसे। तो ऐसे एक कला है, ठीक है ना। चलिए, it is being evident that natural disasters affect men and women differently. It is being evident that natural disasters affects men and women differently. Men and women differently. Women are more vulnerable to disaster. Women are more vulnerable to disaster. Women are more vulnerable to disaster, ठीक है, more vulnerable to disaster due to their less mitigation and adoption strategy. Due to their less mitigation and adoption strategies and adoption strategies ठीक है ना। due to climate change incidence of water wife cases, मैंने कल बताया था, incidence of water wife cases are being increasing. Incidence of water wife cases are being increasing and it is being observed that in the region of earthquake, cyclone, in the earthquake region, cyclones, domestic violence, the cases of domestic violence, trafficking of women
women have increased, मेरे साथ लिखते चलिए, not only the environment sector, even the society, not only environment, the society in which women have to live, induces certain form of critical violence, induces certain form of critical violence with their customary laws, traditions and customs, ठीक है, एंड कस्टम्स, ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हैं यहां पे हमने लिखा है, ओके गणित जी, ठीक है। तो देखिए यहां पे हमने लिखा है, इट इज बीइंग एविडेंट दैट नेचुरल डिजास्टर अफेक्ट मेन एंड वुमेन डिफरेंटली, Women are more vulnerable to disaster due to their less mitigation and adoption strategies. Due to climate change, incidence of water-wise cases are being increased, and it is being observed that in the region of earthquake, cyclones, the cases of domestic violence, trafficking of women have increased. Not only environment, the society in which women have to live induces certain form of critical violence with their customary laws, traditions and customs, ठीक है। So that means we are going to discuss some of the customary laws of the society that are being inducing critical form of violence upon women, ठीक है। बताइए, जल्दी से नोट कीजिए, टाइम होते जा रहा है। ठीक है, जल्दी से बताइए, नोट डाउन जल्दी से कीजिए। सर लिख ले रहे हैं, आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं, जल्दी से नोट डाउन करें। वेरी गुड नितेश, ठीक है, नोट डाउन कंप्लीटेड। चलिए, तो अब हम क्या, हमने यहाँ पे लिखा है, नॉट ओनली एनवायरमेंट, द सोसाइटी इन विच वुमेन हैव टू लिव इंड्यूसेस सर्टेन फॉर्म ऑफ क्रिटिकल वायलेंस विद देयर कस्टमरी लॉज, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, ठीक है। तो अब हमें जो सोसाइटी के बारे में डिस्कस करना है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ लिखिए, आप लोग मेरे साथ साथ सभी बच्चे लिखे, इन द मानसा रीजन ऑफ पंजाब, इन द मानसा region, in the Mansa region of Punjab, polyandry is still being the cases of polyandry, पंजाली नहीं लिखते हैं, cases of polyandry a woman married to more than one man, ठीक है ना। चलिए, ओके। तो यहां लिखा हूं, इन द मानसा रीजन ऑफ पंजाब द केसेस ऑफ पॉलीएंड्री, वुमेन मैरिड मोर देन वन मैन as being prevalent, in the Mansa region of Punjab, the cases of polyandry, a woman married more than one man, is being frequently noticed, is being frequently practiced, to prevent
to prevent fragmentation of the land, fragmentation of their land, the cases of Molki and Paro, the cases of Molki and Paro is also being noticed in the region of Punjab and Haryana, in the region of Punjab and Haryana, due to slew sexual ratio, due to slew sexual ratios, girls are being bought, girls are being bought from the region of northeast states, Bihar, UP, Jharkhand, UP and Jharkhand for the purpose of marriage, for the purpose of marriage, they are being married to carry their lineage. होता है ना, अपने बच्चे परिवार को आगे लेके जाना. They are being married for the purpose of lineage, to carry they are being married to carry forward their lineage, to carry forward their lineage, and sometimes these paros are converted to Panchali, ठीक है ना. They are never being honored. These girls are being treated. These girls are being treated as sexual object. They are never being honored with respect. They are never being honored. They are never being honored with respect. ठीक है, क्लियर. ठीक है. Our society, nevertheless to say, our society is itself responsible for violence that is being perpetuating in the society, perpetuating in the society, ठीक है, क्लियर है. एक बार रीड कर देता हूं, सभी लोग जल्दी नोट कर लीजिए. तो यहां हमने लिखा है, इन द मानसा रीजन ऑफ पंजाब द केसेस ऑफ पॉलीएंड्री, ए वुमन मैरिड टू मोर देन वन husband, more than one man, as being frequently practiced to prevent fragmentation of the lands. The cases of Molki and Paro is also being noticed in the region of Punjab and Haryana due to slew sex ratio. Girls are being brought from the region of northeast states, Bihar, UP and Jharkhand for the purpose of marriage. They are being married to carry forward their lineage, and sometimes these Paros are converted to Panchalis. These girls are being treated
as sexual object, they are never being honored with respect. Nevertheless, to say our society is itself responsible for violence that is being perpetuating in the society. जल्दी से मुझे बताइए अगर नोट डाउन हो गया है तो. ठीक है, नोटेड, जल्दी से बताइए. नोटेड. अभी हमें 4-5 पैराग्राफ लिखना है, मतलब हमें अभी 20 मिनट की जरूरत है. जल्दी से नोट डाउन कीजिए सभी बच्चे, सारे बच्चे जल्दी जल्दी नोट डाउन करें. ठीक है, चलिए. ठीक है, सो अब सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो यहां लिखते हैं 6 ईयर ओल्ड बॉय. समझेगा इस कंसेप्ट को. ए 6 year old boy was found in a sexual position, was found in a sexual position with her sister, now the question arises, how does the boy come to know about this position, come to know about this position, with her sister. एज उसका 4 years था. कितना था? 4 years था. ठीक है, ओके. एक्चुअली basically in slum family lives in single room. Family lives in single room. The sex is the cheapest form of enjoyment that the parent can that their parents can have. ठीक है ना. इसका आंसर जो है, इसका आंसर 6 year old boy was found in sexual position with her sister 4 years old. Now the question arises, how does the boy come to know about this position? Basically in slum family lives in single room. Sex is the cheapest form of entertainment that the parents can have. ठीक है, ओके. So society itself is training such type of activities, training such types of activities. ठीक है ना. उसके बाद आप और कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे. अब हम लोग थोड़ा एंड की बात कर रहे हैं. अब हम थोड़ा सा पंचाली में द्रौपदी ना, यस ठीक है, हम लोग थोड़ा एंडिंग की ओर मूव कर रहे हैं. समय हो रहा है, 20 हो चुका है. तो अगर एक पैराग्राफ आप लोगों को लिखना होगा तो लिख दीजिएगा. उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जल्दी से लिखिए, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ. जल्दी से नोट करें.
नोटेड। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग कुछ एक फैक्टर्स लिख सकते हैं रिगार्डिंग लॉज, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पे रिगार्डिंग लॉज लिख लीजिएगा, रिगार्डिंग लॉज लिख लीजिएगा। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, लिख लीजिएगा आप लोग, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में लिख लीजिएगा, पोस्को एक्ट के बारे में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एज में एड, जुवेनाइल जस्टिस एज की बात करें तो वहाँ पे एज को रिड्यूस किया गया ताकि लोग जो इस क्राइम से बच ना सके। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ स्टेट जो है, कुछ स्टेट्स की बात की जाए, कुछ स्टेट जो है वो स्टेट जो है वो अगर माइनर चाइल्ड का रेप होता है तो दे विल बी पनिश्ड डेथ, डेथ पेनल्टी प्रोवाइड किया जाता है। ये आप लोग लिख लीजिएगा। और भी बहुत सारे लॉज है, लॉज आप लोग जो है लिख लीजिएगा, ठीक है ना, लॉज आप लोग जो है लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एंड करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं। एंड का मैंने कुछ अच्छा पॉइंट लिखा है, ठीक है ना। अब देखिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। टू कंक्लूड इन द इंटरव्यू, टू कंक्लूड, ये मैंने पॉइंट्स नोट डाउन करके रखा है। टू कंक्लूड, टू कंक्लूड इन द इंटरव्यू ऑफ, इन द इंटरव्यू ऑफ निर्भया केस, निर्भया केस, when the culprits, when the culprits, when the culprits are being asked, are being asked, when the culprit is being asked, he replied, Nirbhaya registered, that's why she is being brutally raped. He replied, Nirbhaya registered, that's why she was being raped, she was being raped, she was being raped. Has she accepted our offer? Has she accepted our offer? Accepted our offer. We could have a smooth affair. We could have a smooth affair. This reflect the kind of attitude that is being developing in our country. This reflect the kind of attitude. This reflect the kind of attitude, youngsters have. ठीक है। Attitudinal change, attitudinal and behavior change, attitudinal and behavioral changes are necessary to stop violence against women, to stop violence against women, and this should be done, and this should be done by the family, and schools, with the help of schools, with the help of sexual education, with the help of sexual education and education, gender sensitivity and gender sensitivity and respect towards her, ठीक है। इज इट क्लियर? अब ना एंड करने वाले हैं इसको।
लास्ट पैराग्राफ देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, टू कंक्लूड इन द इंटरव्यू ऑफ निर्भया केस व्हेन द कल्प्रिट वाज बीइंग आस्क्ड इज लिख लीजिएगा, इज बीइंग आस्क्ड, ही रिप्लाइड, व्हेन द कल्प्रिट, एक ही ने कहा था ऐसा बात, व्हेन द कल्प्रिट इज बीइंग आस्क्ड, व्हेन द कल्प्रिट is being asked, he replied, Nirbhaya resisted, that's why she was being raped. Has she accepted our offer, we could have a smooth affair. This reflects the kind of attitude youngsters have. Attitudinal and behavioral changes are necessary to stop violence against women. This should be done by the family and schools with the help of sexual education, gender sensitivity and respect towards her, 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 capital her. Is it okay? सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया? जल्दी से बताइए, तो गांधी जी के कोट है उसको हम लोग लिखते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप सभी लोग। Once it is noted, please do let me know. Noted. ठीक है, चलिए सभी बच्चे नोट कर लिए, जल्दी से जल्दी नोट कीजिए सभी बच्चे। अब देखिए यहाँ पे गांधी जी ने कुछ अच्छा कोट कहा, उसको आप लोग लिख लीजिए। बड़ा कोट था, कहाँ गया, जस्ट ए मोमेंट। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा था यहाँ पे, गांधी जी said years ago, गांधी जी said years ago, गांधी said years ago, if women walk freely on the road, if women walk freely on the road in midnight, that is real freedom for me along with women. That is real freedom for me. That is real freedom for me. That is real freedom for me along with women. ठीक है ना, गांधी जी का कहना था, ये जो है आपका गांधी जी का कहना था, देख सकते हैं, गांधी जी said years ago, if women walk freely on the road in midnight, that is the real freedom for me along with women. If the children are not faced any violence, if the children are not faced, if the children are not faced any violence, if the children are not faced any violence which haunt them for life, which haunt them for life, that is the real freedom of nation. That is the real freedom of nation. That is the real freedom of nation. If that freedom is there, nation growth will be multifold. If that freedom will be there, growth of nation will be multifold, future of nation decides by women and children, and the future
of nation decides by future of nation will be future of nation will be decided by women and men, ठीक है ना। ओके चलिए, और यहाँ पे एक पॉइंट मैं खुद से लिखना चाहता हूं, ठीक है ना। respect her decision and respect her life, be it a tribal woman, Paro or Panchali, even sex workers, should be treated equally, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ माई एसे, ठीक है। देखिए हम लोगों ने एग्जामिनेशन, जिस तरीके से एग्जामिनेशन में हम कंप्लीट करते हैं उसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे 1.5 घंटा में एक ऐसे कंप्लीट कर लिया है। क्लियर है। ये लास्ट में मैंने खुद से लिखा है, रेस्पेक्ट हर डिसीजन, रेस्पेक्ट हर लाइफ, बी इट ए ट्राइबल वुमेन, पारो और पंचाली, इवन द सेक्सुअल वर्कर्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। मुझे कमेंट, जब मैं क्लासेस सबमिट, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब मेरी क्लासेस सबमिट हो जाए, जब मैं ऑफलाइन हो जाऊं, तब उसके बाद कमेंट कीजिएगा, तब वो कमेंट रहता है। अगर ऐसे आप कमेंट की तो लाइव कमेंट है, लाइव के साथ खत्म हो जाएगा। जब मेरी क्लासेस सबमिट हो जाए तो सबमिट होने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा ऐसे कैसा लगा। कुछ मैंने नए डायमेंशंस इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किए हैं, ये काफी अच्छा होता है। लास्ट में अगर इस तरीके से आप लिखते हैं ना, इफ यू वांट टू कन्वे द मैसेज, आप जो है मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं, तो दिस इज द वे ऑफ कन्वेइंग द मैसेज, रेस्पेक्ट हर डिसीजन, रेस्पेक्ट हर लाइफ, बी इट अ ट्राइबल वुमेन, पारो or Panchali, even sex workers should be treated equally. Gandhi said years ago, if women walk freely on the road in midnight, that's the real freedom for her, for me, along with women. If the children are not faced any violence which haunt them for life, that is the real freedom of nation. If that freedom will be there, growth of the nation will be multifold, and therefore the nation will be decided by women and men. आपको पता है जो सेक्सुअल एक्टिविटी जो होता है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी की बात में होता है सिर्फ 10 मिनट का, मैन एंजॉय करके निकल जाता है, लेकिन उसका पेन जो है वुमन हैज टू कैरी फॉर ईयर्स, ठीक है ना। उसी से रिलेटेड एक कोट है। सो इज इट ओके, आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइएगा। सो आई लाइक टू एंड द सेशन ओवर हियर। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। वंस इट इज नोटेड प्लीज डू लेट मी नो, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। वर्ड्स आप लोग काउंट कर लीजिएगा, मैंने वर्ड्स काउंट नहीं किया है। ऑलवेज वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट अवर एसे, रेस्ट्रिक्ट मतलब 1200 से 1300, कोशिश करना चाहिए हमारे एसे जो है 1000 से 1200 हो। आप इसका वर्ड्स काउंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैंने काउंट नहीं किया, मैंने लिखते लिखते बहुत ज्यादा लिख दिया, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, थैंक्स लॉट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।